Good evening, everybody. I hope you're able to hear me and see me. Yes. Sorry, because of some technical glitches, I was able to join a little later. But welcome everybody here on Facebook Live with me. And this particular webinar, as you would have just heard, Mr. Pushpamitra Bhargav has been, is being actually broadcasted on his request for a lot of, our friends in fraternity from the legal profession and otherwise. And we are very happy to, have this on live on Facebook today, because there are a lot of friends and, I would say colleagues who have requested me also to, discuss this issue. It's a very apt issue we are discussing today. And I want to thank the Sanghamitra, organization for having given me this opportunity to discuss and share my views, and Mr. Bhargav to take up this initiative to reach out to his friends and followers and other people who would be interested in the topic. The topic, as you would have seen, is how we can maintain digital safety in COVID times. And I want to, at the outset, thank everybody, each of you here, who has come, spared time and come to hear us today on this subject. A lot of webinars have been, floating the web, but I think this topic is by far the most important. What can be, more important than your own safety and your health, whether it is physical well-being or it is, your own well-being in terms of digital space. It's very, very essential. And today we are going to talk about some of these issues which are very, very grave. And I will like to use a mix of Hindi and English, because I know this Facebook Live is being watched in MP and other states where both languages are used, and therefore I choose to use both to cater to a lot of my friends and audience everywhere. So as we see, the topic cyber space and cyber crimes, I'll start with this case, which you've seen yesterday, where the boys locked down, lock room, as they call it, and that was available on Instagram. And what is happening? Some objectionable, pictures, obscene material hai. And there are lots of things which abusive, in that sense that they are using language which is derogatory and threatening that we will rape some girls belonging to schools. There are 4 schools involved in this whole, chat group. FIR has been registered against them, and these children, we don't know whether they really knew that this is an offense or not, or were they doing it malafidely. So that is why it is very important to spread this knowledge. ये जो मुद्दा है बहुत ज़रूरी है साइबर लॉ का, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं. कल हमने देखा कि कैसे एक बॉयज़ का जो ग्रुप है इंस्टाग्राम पे बना हुआ बहुत से अश्लील शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, और बच्चों में ये आपस में बातचीत चल रही है और थ्रेटनिंग वे में गर्ल्स के अगेंस्ट लिखा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है. अब लॉट ऑफ लॉज गेट इन्वॉल्व, इसमें IPC भी लगता है, पॉक्सो भी लगता है, जो कि स्पेशल लॉ है. तो हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे. अब जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक क्राइम है. IPC की धाराएं हैं 354A, और बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो IT एक्ट के अंतर्गत हैं, जैसे सेक्शन 67A, जिसमें 5 साल तक की भी सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन. तो इस तरीके के जो केसेस हो रहे हैं जिसमें थ्रेट यूज़ हो रहा है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनको मालूम भी नहीं. और सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉक्सो के तहत भी, पॉक्सो जो लॉ है सेक्शन 11 और 12 आप देखेंगे, उसके तहत भी ये एक क्राइम है. ये एक क्राइम है और उसमें 3 साल तक की सज़ा है. तो
और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं हमारे देश में जो लोगों को मालूम नहीं है। कल ही हमने एक और वेबिनार किया था जिसमें हम बातचीत कर रहे थे कि साइबर क्राइम्स बच्चों के अगेंस्ट कितने बढ़ गए हैं, जो क्राइम्स बच्चों के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो मैं मोटे तौर पे बताना चाहूँगी कि MHA की स्टैटिस्टिक्स इन दौरान, ये जो कोविड का टाइम है, आप कोविड के टाइम में ही देखिए तो 86% राइज हुआ है साइबर क्राइम। और चिल्ड्रन 20% जो हैं उसमें शिकार हैं बच्चे बेसिकली इस साइबर क्राइम को लेकर के। और जो हमारी NCRB की स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आप वो देखेंगे तो 77% राइज हुआ है इन साइबर क्राइम्स फ्रॉम द लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स जो हमें बताई गई हैं। किस तरीके के ऑफेंसेस हो रहे हैं? फ्रॉड सबसे ज़्यादा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड डेफेमेशन, ये 3 मेन जो हैं आप देखेंगे ये क्राइम्स ज़्यादा इसमें बढ़ गए हैं। और जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो डबल ट्रिपल हो गए हैं। अब पॉक्सो के कोर्ट्स ही अगर आप देखें, जो स्पेशल लॉ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट बच्चों के को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, 600 से ज़्यादा कोर्ट्स हैं जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। तो हज़ारों की तादाद में ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और हर एक आई वुड से कि हर एक सिटीज़न, हर एक नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को जाने और आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ताकि जहाँ प्रिवेंशन पॉसिबल है वहाँ प्रिवेंशन हो, और जहाँ कुछ लीगल रिकॉर्ड्स की बात आती है, इंसिडेंट हो जाता है, लीगल रिकॉर्ड्स चाहिए, वहाँ लीगल रिकॉर्ड्स भी अप्लाई कर सकें। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का आइडिया दिया है, बट हज़ारों में ये रिपोर्टिंग हो रही है। और अभी भी मैं कहती हूँ कि अंडर रिपोर्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो उसमें भी मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ तक बच्चों की साइबर क्राइम्स को लेकर के सवाल है, वहाँ मैंडेटरी रिपोर्टिंग प्रोविजंस हैं। तो अगर आप नहीं करते तो 6 महीने, साल भर की सज़ा भी है उन प्रोविजंस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्पेशली इन दिनों ये देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग, काउंसलिंग फ्रॉम द स्कूल साइड ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम योर ओन साइड एज अ पेरेंट भी आप इसे प्रॉपरली काउंसलिंग करिए और फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, सो दैट यू नो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ वेलनेस को लेकर के जो मैं बोलना चाहूँगी कि मेंटल स्ट्रेन ड्यूरिंग कोविड सिर्फ बच्चों को नहीं हुआ, बड़ों को भी हुआ है। पर बड़े तो फिर भी उसे हैंडल कर सकते हैं, उनके पास इतनी क्षमता, इतनी नॉलेज है, लेकिन बच्चों में ये नहीं है। और उनको एंगेज रखना, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, योगा है, मेडिटेशन है, उस चीज़ों में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस बैकग्राउंड एंड स्टैटिस्टिक्स एंड जो अभी सिनेरियो चल रहा है, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द क्राइम्स। किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं अब देखेंगे। सबसे पहले फेक मोबाइल रिचार्ज, बहुत सारे क्राइम्स हैं इस चीज़ को लेकर के। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शंस को लेकर के बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। कोई फेक लिंक भेज देगा व्हाट्सएप पे या कहीं भी आपको, और उसको क्लिक करने को बोलेगा आप रिचार्ज करिए फ़ोन अपना, या अपना क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन करिए, या आपको कोई नेट बैंकिंग में दिक्कत आ रही है। आप मानेंगे नहीं, मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन people don't know. I am a cyber law expert. I will not get into this. But people are calling me and saying कि आपका नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है मैडम, we want to help you during COVID. And how many people like me must have got these calls? कितने ही लोगों को ये कॉल्स आए होंगे। तो प्लीज़ ऐसे कॉल्स को एंटरटेन नहीं करें। आप प्लीज़ किसी को अपनी इंफॉर्मेशन, स्पेशली फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील ना करें। और बहुत सारे ऐसे डोनेशन, फेक डोनेशन साइट्स भी हैं इस टाइम, जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत सारे फेक लिंक्स, वेबसाइट्स, डोमेन नेम्स खरीदे गए हैं। इसी कोविड के दौरान 50% से ज़्यादा जो डोमेन या वेबसाइट बुकिंग हुई हैं वो फेक डोमेन आईडीज़ को लेकर के हैं, कोविड को लेकर के हैं, और कह रहे हैं कि हमें डोनेशन दीजिए, हम इस पे काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, बट दे आर फेक। तो किसी को डोनेशन देना है तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए। आपके पास WHO है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, PM केयर्स रिलीफ फंड है, और आप सरप्राइज मत होइए, बट PM रिलीफ केयर केयर्स रिलीफ फंड को लेकर के भी एक FIR हो गया है, क्योंकि फेक हैंडल्स उसके अलग अलग बैंक के नाम से फेक हैंडल्स क्रिएट कर दिए गए हैं। तो इससे भी बहुत बहुत सतर्क रहना है, बहुत बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कहीं देना भी हो डोनेशन तो कहीं ऑथेंटिक गवर्नमेंट की साइट पे ही दीजिए।
फिर आप देखेंगे कि मैंने इंदौर का देख रही थी कि फूड में बाय वन गेट वन फ्री सुना होगा आपने, लेकिन फूड को लेकर के ड्यूरिंग कोविड के बाय वन थाली ऑफ फूड यू विल गेट अनदर फ्री, ये भी हो रहा है और एडवाइजरीज इशू हुए हैं इस चीज़ को लेकर के। तो एमपी में और जगह पे भी ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं इसी दौरान, और सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है इसे, क्योंकि आपको सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे ऐसे तरह के फेक एड्स दिए जा रहे हैं जिसमें फेक कोर्सेज हो सकते हैं, फेक कंसल्टेशन है, लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और फेक हैं कई। तो अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहाँ पेमेंट कर रहे हैं, क्या वहाँ HTTPS है, क्या वो ओरिजिनल वेरीफाइड सोर्स भी है, उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है, वो पर्टिकुलर क्रेडिबिलिटी है उसकी या नहीं। रिव्यूज़ पढ़िए, ऐसे ही नहीं किसी को भी सर्विस किसी की अवेल करने की कोशिश कीजिए। So that is what I wanted to come out and say, and I've been doing that all through COVID, and otherwise also it's my role that I have tried to train law enforcement and judiciary judges, I would say even police officers, and interacted with schools and interacted with educational institutions, spreading this awareness, which is now more important than ever actually, to tell you very frankly. Now that takes me to advisories. The computer, I would say, CERT is working. Then MIT, which is the Ministry of Information and Technology, they have also issued advisories. उन्होंने ऐसे advisories दी हैं कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, घर से आप काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से वो उस एडवाइजरीज को मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जूम है या कोई और सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ग्लिचेस हैं और रिपोर्ट्स हैं इस चीज़ पे कि कैसे उन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सेफर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाए, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, उनका यूज़ करना, उनकी प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी सेटिंग्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिक आईडीज़ क्रिएट करिए जिसमें कोई और आउटसाइडर अंदर इंट्रूड ना कर पाए, और किस तरीके से आप उसे कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। आप जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT की साइट पे भी, और खूब सारे एडवाइजरीज हैं, MHA ने भी दिए हैं, आप देखिए उनको एंड तभी ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करिए। देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट द लॉट ऑफ द फिशिंग अटैक्स, अब एप्स हैं, आप एप्स कोई भी डाउनलोड करते हैं, चाहे एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं या कुछ भी है। नाउ आई वुड से लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे भी अटैक्स हैं जिनमें कि एप्स गलत हैं, वो फेक हैं, कम्प्लीटली फेक हैं, एंड नॉट ओनली डू दे स्टील अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे वो आपका फ़ोटो एक्सेस मांग लेंगे, वीडियो एक्सेस मांग लेंगे। अब अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है और आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, व्हाई डू दे नीड एक्सेस, क्यों चाहिए उनको आपकी फ़ोटोग्राफ्स, क्यों? बिकॉज लेटर ऑन दे विल यूज़ देम एज डीप फेक्स, दे विल यूज़ देम एज मॉर्फिंग, वो उनको चेंज करके बाद में एक्सटॉर्शन रैकेट्स हो रहे हैं, बहुत सारे गलत इस्तेमाल हो रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स का। तो वाई शुड वी गिव अवे एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ सेंसिटिव, हमें नहीं देना है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू टेल अदर्स ऑल्सो। बिकॉज जब हम एक ऐप को डाउनलोड करें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, वी हैव टू यूज़ दी टर्म्स एंड कंडीशंस टू अंडरस्टैंड कि हम उसको दे क्या रहे हैं एक्सेस। आफ्टर ऑल प्राइवेसी भी तो है, इट इज़ आवर डोमेन, लाइक आवर फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच में ये कहा है कि आपकी राइट टू, इट्स अ फंडामेंटल राइट, यू हैव अ राइट टू प्रिवेसी। और अगर ऐसा है तो कोई ऐप या कोई इवन आई वुड से गवर्नमेंट, nobody can without procedure of law take away your information and without your consent। तो आप इग्नोरेंट ना होइए, आप उसे पढ़िए और तभी कोई कंसेंट दीजिए जब उस सर्विस को अवेल करने के लिए उसकी ज़रूरत हो, अदरवाइज नहीं दीजिए, जस्ट डिनाई इट। और अगर आपने ऑलरेडी कोई ऐप्स एक्सेस किए हुए हैं और रखे हुए हैं अपने डिवाइस पे, यू कैन स्टिल चेंज द सेटिंग्स इन मेनी ऑफ देम, या अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। अगर डेटा है उसमें तो आप सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज कर लीजिए, दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। और बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, मेरे को कई क्वेरीज आई हैं इन दिनों में, मैं आई थिंक आई हैव बीन फ्लडेड विद लॉट ऑफ क्वेरीज। कोई गलत नंबर से फ़ोन आ रहा है, कोई इंटरनेट के थ्रू फ़ोन आ रहा है VoIP लोगों को, और वहाँ पर क्या कहा जा रहा है
लोगों को कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि मतलब आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, अपने अदर इंफॉर्मेशन दे दीजिए इस तरीके की, या हमें कोई आपको कुछ पिक्चर भेजना है या आपको कोई पेमेंट करना है, अगर आपने कोई ऐड छोड़ रखा है, कहीं लिख रखा है आपने ऐड कि आपको कुछ बेचना है, तो वो ऐप के थ्रू आपको या वैसे ही कांटेक्ट कर रहे हैं, दे सेइंग दैट ओके यू पे मी थ्रू से पेटीएम और सम अदर ऐप। आप उसमें QR कोड स्कैनिंग मत करिए। QR कोड स्कैनिंग होते ही इफ़ इट्स रिटन फॉर एग्जांपल कि मैं 25,000 रुपीज़ एक्सेप्ट, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, 25,000 रुपीज़ एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो वो आपके यहाँ से डेबिट हो जाएगा, ना कि वो आपको इनफैक्ट आपको पे नहीं कर रहा है, वो आपको पे नहीं कर रहा है, बट ही विल प्रिटेंड दैट ही इज़ पेइंग यू, मैं आपकी चीज़ खरीद रहा हूँ। सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। बहुत सारे लोगों के साथ नोएडा रीजन में ही, NCR रीजन में ही ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, एंड वी हैव बीन अप्रोच्ड, लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैव सेड कि इन ट्रैप्स में हम फंस गए हैं, व्हाट टू डू, कैसे मनी रिकवर हो। सो इससे पहले कि ये प्रॉब्लम्स अराइज हों, लेट्स अवॉइड देम, लेट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो दैट दिस इज हैपनिंग एंड लेट्स अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। देन मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि अगर SMS के ज़रिए ये फ्रॉड होता है तो उसे स्मिशिंग कहा जाता है। अगर वो ईमेल के ज़रिए हो रहा है, कई बार फिशिंग कहा जाता है। और अगर वो वीडियोस भेज के हो रहा है, उसमें एक मैलवेयर डाल दिया गया है, कोई एक आपसे तो ये भी हो सकता है कि एक जैसे CCTV में सब कुछ दिख रहा है, तो की लॉगर मैलवेयर हो सकते हैं, जिससे कि आपकी पूरी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो अवेलेबल है, वो विजिबल है, वो दिख रहा है दूसरे को, तो वो नहीं हम चाहते। तो कोई भी, चाहे आप एजुकेशनल मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं नेट से, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर रखना बहुत ज़रूरी है, और सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मांग रहा है आपसे, चाहे मेल के ज़रिए तो फिशिंग होगा, और अगर फ़ोन के ज़रिए तो विशिंग बोला जाता है। तो ये सब जानकारी हमें मिलना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। एंड let's engage in this conversation today. I'm very happy that we are able to reach out to you today through this medium. And मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि लॉ क्या है। अब IT एक्ट जो है हमारा स्पेशल लॉ है इस कंट्री में, हमें बहुत सारे हमारे पास प्रोविजंस हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। सेक्शन 66 जो है, हैकिंग अगर हो तो अनऑथराइज्डली कोई आपका डेटा ले रहा है, या कोई इसे कॉपी कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, या कोई ईमेल अकाउंट में हैकिंग कर रहा है, तो वो सारे जो हैं सेक्शन 66 में पनिशेबल हैं एक्ट्स, जिसमें 3 साल तक की सज़ा और फाइन है। कोई अश्लील पिक्चर या वीडियो वायरल करता है, कोई सेल्फी मांग लेता है, और आप कहीं से मॉर्फिंग होके पिक्चर डाउनलोड होके नेट पे आ गई है, अपलोड हो गई है, ये सारे पब्लिशिंग और सर्कुलेशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट, सुप्रीम कोर्ट तक ने इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के, ब्लॉकिंग को लेकर के एक बहुत ही इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट केसेस में ये इस पर जांच चल रही है, और इस पे कार्रवाई हो रही है कि इसको कैसे ब्लॉक किया जा सके। ये एक खुद ऑफेंस है जो सेक्शन 67A में है कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को आप पब्लिश और ट्रांसमिट नहीं कर सकते। DNA फोटो हैश मैकेनिज्म जैसे बहुत सारे आजकल नए टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिससे इनको ब्लॉक किया जा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये इस चीज़ को जानें, और ये क्राइम है, इस चीज़ की बात करें। कितने सारे बच्चे हैं या इवन एडल्ट्स जो फेक प्रोफाइल क्रिएट करने में सोचते हैं कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। फेक प्रोफाइल क्रिएट करना, किसी को चीट करना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लीगल। कंट्री में हमारे ये इलीगल है। अगर आइडेंटिटी थेफ्ट हो, चीटिंग बाय पर्सनेशन हो, सेक्शन 66C और D IT एक्ट का 3 साल तक की सज़ा और फाइन, ये है हमारा लॉ जो कंट्री में है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी ब्राउजिंग भी एक कम्प्लीटली इलीगल एक्ट है। स्टोरिंग, प्रोड्यूसिंग, क्रिएशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ कम्प्लीटली इलीगल, और वो जो है उसमें तो सज़ा भी 5 साल और उससे ज़्यादा है, और फाइन है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता, जो हमें मैसेज हम इस कोशिश में है कि ये मैसेज हम फैलाएं। और आज जो कल का हमने केस देखा, जिसके बारे में मैं शुरू में भी बात करी, जो बॉयज़ का जो लॉकर केस है,
अब इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, हमने पहले भी ये DPS MMS फ्रॉड केस में भी देखा था, जो हुआ था वायरल MMS वीडियोस। तो ये दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। ये जागरूकता इस टाइम इंडिया में होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक ये जागरूकता फैलाई जाए, तो ये बहुत एसेंशियल है। एंड फिर मैं आती हूँ आपको इस बारे में बताना फेक न्यूज़ के बारे में। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आजकल जो अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप ने कई कोशिश करी है कि भाई 5 से ज़्यादा फॉरवर्ड्स ना हों, और प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं, बट वी कैन ऑल्सो चेक। हम ऑफिशियल हैंडल्स पे जाएं, जो न्यूज़ हैंडल्स हैं, न्यूज़पेपर हैंडल्स हैं, और उन पे जाएं और वहाँ जाके देखें कि ऑफिशियली क्या करेक्ट न्यूज़ है। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने फैक्ट चेकर एक विंडो बना दिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है कि ये न्यूज़ सही है या नहीं, आप आगे मत फॉरवर्ड करिए, बिकॉज फेक न्यूज़ यू शुड नॉट स्प्रेड। अभी लास्ट वीक एक मेरे पास केस था जिसमें एक एंटी रिलीजियस कंटेंट जिस किसी ग्रुप की डिस्कशन में वायरल हो गया। अब एंटी रिलीजियस कंटेंट भी उस पर्सन ने जिसने डाला, ही डिड नॉट नो दिस इज इलीगल। सो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो टोल्ड हिम कि ये इलीगल है, बट उसको नहीं मालूम। तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि IPC में ऐसी धाराएं हैं जिसमें एंटी रिलीजियस कंटेंट नहीं डाला जा सकता। अगेन 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, तो ये वी हैव टू बी केयरफुल। फिर अगर आप देखेंगे कि मिथ्स जो हैं, अब गार्लिक खा लेंगे तो कोविड नहीं होगा, फेक मेडिसिन्स के प्रोपागेंडास हैं, धूप पे खड़े होंगे तो कोविड नहीं होगा। इस तरह के मिथ्स हैं जो इवन WHO साइट इफ़ यू सी, वहाँ पर ये मिथ कॉलम लगा है, और गवर्नमेंट की साइट्स में भी, हमारे MHA में भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में देखिए, वहाँ पर भी क्लियरली दिया हुआ है ये मिथ है और ये रियलिटी है। तो आपको वो फॉलो करना है जो रियलिटी है, एंड जस्ट हेल्प पीपल नो दिस इज फेक। बहुत सारी फेक न्यूज़ इस टाइम चल रही है। देन सेफ्टी टिप्स is something I've been going on and on these various issues which are there, but in crux जो अगर हम कहें कि हम सेफ कैसे रह सकते हैं, तो there is a possibility that आप अभी भी एंटीवायरसेस यूज़ कर रहे हैं, बट एंटी स्पाईवेयर भी होना आजकल ज़रूरी है। वाईफाई सिस्टम्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो घर के सिस्टम्स हैं, वाईफाई पासवर्ड्स आप चेंज करते रहिए। मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, तो अगर कुछ गलत देखें तो देर इज़ अ हेल्पलाइन एंड देर इज़ अ रिपोर्टिंग पॉसिबल। cybercrime.gov.in ये एक नेशनल साइबर क्राइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है। cybercrime.gov.in आप ऑनलाइन घर में बैठे बैठे किसी गलत चीज़ को अगर आप देखते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देन 112 इज़ अ हेल्पलाइन। आप 112 पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक हेल्पलाइन मिलेगा, एंड वहाँ पर इट्स पॉसिबल कि आप कोई भी जानकारी कोविड के रिलेटेड या वैसे कोई भी अगर आपको इशू है, रिपोर्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप सोशल मीडिया पोर्टल्स देखेंगे, हर पोर्टल में एक रिपोर्ट अब्यूज़ बटन है। सो वी कैन यूज़ दैट, एंड कभी कुछ गलत अगर आपको इस पोर्टल पे दिखे, आप उसको इन्फॉर्म करिए पोर्टल को। दे विल रिमूव इट, दे विल हैव टू रिमूव इट विदिन 36 आवर्स, और वो एक ऑप्शन नहीं है, इट्स अ लॉ ऑफ द लैंड। सो दे हैव टू कंप्लाई विद दैट, वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई फेक प्रोफाइल क्रिएट हुआ है तो उसमें फेसबुक में भी एक ऑप्शन है, अगर आप रिपोर्ट करते हैं somebody is pretended like me, वो ऑप्शन भी है, तो आप इमीडिएटली उसे ब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। देन फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर पेरेंट्स के लिए तो बहुत इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, तो ब्राउज़र में भी जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। Even for my kids I have done that, and it is very useful because you can check they will not be able to open any site which is pornographic or any kind of adult content there, and वो आप setting खुद ही जाके browser में भी कर सकते हैं। So that is possible, and आप उसे भी use करिए। Then also I would say before spreading any news ahead, किसी को आगे भेज रहे हैं, just verify the news, read the terms before downloading any service or an app, यूज़ 2-factor ऑथेंटिकेशन। अगर आपने अकाउंट्स के साथ 2-factor ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, जैसे OTP आएगा आपके पास अपार्ट फ्रॉम लॉगिंग इन, जो आपका जनरल पासवर्ड है, नेट बैंकिंग के लिए स्पेशली या वैसे ईमेल IDs के लिए भी
ये यूज़ करिए, दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल आई वुड से। एंड रिपोर्ट अब यूज़ करिए कुछ गलत दिखे तो। वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट में भी अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, यू हैव टू टाइप द रियल URL। हम बैंक को, अगर हम बैंक का नेम गूगल में जाके ढूंढते हैं और उस पर क्लिक करके कुछ भी साइट पर जाके नेट बैंकिंग पासवर्ड डाल देते हैं, दैट विल बी टू मच। वी कांट डू दैट एज एजुकेटेड पीपल। हम लोग को बहुत ध्यान रखना है कि जो लॉक साइन है एक तो वो हो, सिक्योरली पेमेंट अगर हमने करना है कहीं, और अगर नेट बैंकिंग यूज़ करें तो उस बैंक का पर्टिकुलर URL एड्रेस बार में जाके टाइप करें। ये नहीं कि हम किसी भी साइट पे चले गए और लग रहा है कि HDFC है या लग रहा है कि सिटी है या कोई और बैंक है एंड उस पर कर लिया। दैट शुड नॉट बी द केस। देन ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जब हमें कोई बच्चों के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो 1098 इज़ ऑल्सो देयर। POCSO, there's a button, you know, on the NCPCR site, National Commission for Protection of Child Rights. तो उसमें एक POCSO बटन है। अगर आप anonymously भी रिपोर्ट करना चाहें, इवन दैट इज़ पॉसिबल ऑन दैट cybercrime.gov.in पोर्टल। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होगी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और स्पेशली चिल्ड्रन रिलेटेड फ्रॉड्स में उनका नाम नहीं आता। सो देर इज़ अ प्रोसेस बाय विच मीडिया पर्सन्स ऑल्सो एंड अदरवाइज they will not be able to reveal anything, in terms of, what is the name of the child and other details. सब कुछ बहुत सिक्योर वे में है। एंड इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी होते हैं, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है तो इन कैमरा। सो कोर्ट प्रोसीजर में यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली है। एंड कल भी हम जस्टिस कुरियन जोसेफ से इसी चर्चा पे थे कि हम किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द न्यू सिस्टम एंड द न्यू प्रॉब्लम्स विच आर अराइजिंग। एंड इट वाज अ यूजफुल सेशन। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारा जुडिशरी भी, जो अभी आजकल आप देख रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट्स में केसेस हो रहे हैं। सो जो अर्जेंट केसेस हैं हम इस तरह से हैंडल कर रहे हैं। और हमारा जो होल कोर्ट सिस्टम है, आपने ई कोर्ट्स के बारे में शायद सुना होगा, बट द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट में 18,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और 21 हाई कोर्ट्स हैं। और इन हाई कोर्ट्स में ये अवेलेबल है ई कोर्ट्स की जो सॉफ्टवेयर है। और लास्ट ईयर इनफैक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया गया जिसमें एक वर्चुअल कोर्ट रूम बनाया गया है। छोटे छोटे पेटी मैटर्स जैसे ट्रैफिक चलान्स वगैरह AI के ज़रिए से, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से रिजॉल्व होंगे तो एडजुडिकेट होंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम है जुडिशरी एक्सेस टू जस्टिस भी बहुत चेंज हो रहा है। और स्पेशली कोविड टाइम्स में एक्सेलरेट हो जाएगा ये कि कैसे हमारा सारा कुछ बिजनेस हो, चाहे जुडिशरी चाहे एक्सेस टू जस्टिस, कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। it's going to completely revolutionize the way we provide access to justice in the country. एंड ये दिन दूर नहीं है कि अगर हम ऐसे भी केसेस देखें जहाँ रोबोट्स, AI एंड डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए से केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं। इट विल हैपन एंड इट्स नॉट फार, आई वुड से। लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में भी बोलना चाहूँगी। जब आप सोचते हैं कि भाई अगर एक चैट है या एक ईमेल है, क्या हम ये कोर्ट में ले जा सकते हैं? क्या वी कैन प्रूव दिस, समबडी हैज सेंड दिस टू अस? यस, इट इज़ पॉसिबल। बिकॉज आप उसको लेकर के आप उसका एक स्क्रीनशॉट रखिए, उसकी डिटेल्स रखिए, डिलीट मत करिए। एंड ओरिजिनल डिवाइस भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन उसका एक इमेज फाइल जैसे होता है इसके कॉपी बना सकते हैं और उसको कोर्ट में दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है कोर्ट में। जैसे आपके हाथ से लिखे हुए सिग्नेचर्स या डिजिटल सिग्नेचर्स इक्विवेलेंट हैं, IT एक्ट ये कहता है कि लीगली आप ये कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। और उसका प्रूफ करने का अलग वो है, एविडेंस में दिया हुआ है कैसे वो उसको प्रूफ करेंगे। और एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लास्ट वेबिनार्स में निकली, कई बच्चों ने कहा कि क्या हम टॉर यूज़ कर सकते हैं, क्या हम ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम अपने आप को हाइड कर सकते हैं, एनोनिमस हो सकते हैं। येस, व्हाई नॉट, यू कैन, क्योंकि वो लीगल है। आप अपने आप को नहीं रिवील करना चाहते आपकी आइडेंटिटी, दैट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी एंड प्राइवेसी, विच इज़ ओके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको लेकर के करने के बाद, अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाने के बाद
कोई गलत काम करें जिससे कि इलीगल हो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। पर वैसे आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस चीज़ का। बाकी मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि लॉट ऑफ टाइम्स वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी इश्यूज़ इन द सेंस के लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंटरनेट को लेकर के ब्रॉडबैंड हैं, इश्यूज़ हैं। बट ब्रॉडबैंड रिलेटेड इश्यूज़ में इतनी डिफ़िकल्टी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में आ सकती है, बट आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई हैकिंग अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, अगर आपको लगे, तो आप अपना प्लीज़ एक क्रिटिकल स्कैन चेक ज़रूर रोज़ एक कर लीजिए, क्योंकि आजकल स्पेशली बहुत मैलवेयर है, की लॉगर्स, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं नेट से, उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो मूवीज़ के लिए हैं या कोई ऑडियोज़ के लिए हैं या कोई कैरियोके डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर है या ऐप है, उनमें भी प्रॉब्लम्स एंड ट्रोजन्स हो सकते हैं। सो उन चीज़ों को आई थिंक ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, दैट वी शुड नॉट जस्ट डाउनलोड समथिंग विदाउट चेकिंग, एंड अगर हम कर भी लेते हैं बाय चांस, उसे एक मैलवेयर स्कैन ज़रूर कर लें। सो आई थिंक विद दिस मैं आपको ये भी आई थिंक वी विल हैव अ चैट सेशन नाउ। कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वी वेरी हैप्पी टू टेक देम। बट आप मुझसे जुड़िए, ट्विटर पे भी जुड़िए, मेरा ट्विटर हैंडल ऐड करने का सेट है, एंड फेसबुक पे तो द माई पेज इज़ देयर, आई सेंट इट ओपन दी एड ऑल्सो, इट्स करने का सेट.1। यूट्यूब वी हैव अ चैनल कॉल्ड साइबर लॉ इंडिया, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। उसमें करंट टॉपिक्स पे करंट वेबिनार्स के सब रिकॉर्डिंग्स हैं, और लिंक्डइन से भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो हम कुछ ना कुछ नया हो रहा है साइबर स्पेस में एवरी डे, एंड इट्स विद टेक्नोलॉजी इट्स नॉट अ चैलेंज रियली, यू कैन फाइंड द राइट इंफॉर्मेशन, एंड आई थिंक माई एफर्ट्स आर नॉट ओनली कि हम अपने प्रोफेशन में अपना काम कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस, बिकॉज वी नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी हैव सम अवेयरनेस ऑन दिस इशू। तो platforms like these, thanks to Facebook, and platforms like these, and the Sangamitra, which has now involved me today for this platform, and Mr. Bhargav, thank you so much for taking this initiative and asking me to speak to all our friends and colleagues today. मैं ये होप करती हूँ कि जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं उनको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, and this broadcast which is live. I can see a lot of comments, but I am now ready to take questions. अगर आप कोई भी questions हैं आपके पास तो please feel free. I think Mr. Bhargav will also like to send me some comments, but I will answer them now. I can see the questions on screen. If you can type. Yes. What are the risks associated with using public Wi-Fi? Yes, public Wi-Fi, yes, it can be problematic because a lot of people are logging in, and a lot of people, there is no security really. If you're going to a cafe, for example, if you're using it in airports or otherwise, we don't know. You may even forget to log off, and the systems may not be so secure. So दे कुड बी इंट्रूडर्स। तो इसलिए बहुत ध्यान में रखना है कि बाहर का वाईफाई और बाहर के सिस्टम्स को यूज़ कम से कम करिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जूम ऐप जो है, हाँ, काफ़ी सारी ग्लिचेस हैं इसमें, बहुत डिफ़िकल्टीज रही हैं पीछे, और आई थिंक जो MIT है उसने बहुत इंटरेस्टिंग एडवाइजरीज इशू किए हैं कि उसमें यूनिक आईडी नहीं है। उसमें वेटिंग रूम में आप वेट करिए, और फिर वेटिंग रूम में वेट करने के बाद अलाउ करिए किसी को अंदर एंटर करने के लिए, और उसका आईडी होना चाहिए। उसको ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते किसी को, यू कैन रिमूव द पर्सन फ्रॉम द रूम ऑल्सो। सो वो एडवाइजरी पढ़िए, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडवाइजरी ऑन जूम। एंड इंस्टेड ऑफ देयर इज अ क्वेश्चन विच इज़, अगर आप फेसबुक या गूगल अकाउंट से ही लॉग इन कर रहे हैं पर्टिकुलर ईमेल के लिए, फ्रॉम द फॉर अ पर्टिकुलर ऐप,
it's very important that you try and create some separate accounts, because you're giving access to a lot of information, your email and your password. So it's better to create a separate account. Instead of that, logging in through those Facebook and other Google accounts, you can actually have a पासवर्ड मैनेजर. तो एक पासवर्ड मैनेजर होगा, वो सारे अकाउंट्स को इनक्रिप्ट करके रखेगा, अकाउंट एंड पासवर्ड आईडीज. सो उसमें दैट इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल. सो अनदर थिंग विच पीपल वांट टू नो इज़ कि ऐप जो है, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, सपोजिंगली वो कैमरा एंड कॉन्टैक्ट एक्सेस मांग रहा है, अगर उस सर्विस के लिए आपको नहीं ज़रूरत है उस चीज़ की, कैमरा और ऐप एक्सेस देने की, तो आप मत दीजिए. अब कोई ऐसे ऐप्स हैं जिसमें कि कैमरा में एक्सेस मांग रहे हैं, जैसे फूड ऐप है. अगर आपको फूड डिलीवरी चाहिए, तो फूड डिलीवरी के लिए कैमरा की तो कोई ज़रूरत नहीं है. इट कैन आस्क यू फॉर लोकेशन, बट देन यू कैन चूज कि किस टाइम आप वो ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप वो एक्सेस अलाउ करिए, ओनली फॉर द लोकेशन पर्पसेस, नॉट अदरवाइज. और आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें, प्लीज फील फ्री टू टाइप इन द विंडो राइट अवे, बिकॉज आई एम एबल टू सी देम ऑन स्क्रीन नाउ. तो आप उसे टाइप करिए. You are using, there is a question, you are using Google Hangout app in the work from home, and the same is used from mobile also for net banking and wallet. Same mobile is being used for that. I don't see a problem as long as security settings are there, because they are credible companies, and use only credible companies. That's very important. And as far as data sharing policy is concerned, there's a very interesting question on personal data. पर्सनल डेटा इज़ प्राइवेट, एंड आपके पास ऑप्शन है वेदर यू वांट टू गिव इट अवे और यू डोंट वांट टू गिव इट अवे. बट अब जो PDP बिल है आने वाला है, एक्ट बन जाएगा वेरी सून, उसके अंदर आपके पास एक एक्सप्रेस राइट है, आप मना कर सकते हैं. अगर कोई आपसे डेटा मांग रहा है, कोई ऐसा डेटा जो आपको नहीं देना, यू कैन ऑलवेज से नो, वी डोंट वांट टू शेयर दिस डेटा. दैट्स पॉसिबल, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस. 20 million euros USD फाइन है, और I mean it's a very very strict act, like GDPR. It's a very very strict act, in terms of fines. Arogya Setu app is a very good app. You can use it's by the Mighty, and this tool is safe and secure. A lot of questions also have come to me whether we can safely use this, because a lot of data, location data is going. But you can, because ये थोड़े टाइम के लिए है, कोविड टाइम के लिए बनाया गया है. इट्स यूजफुल, यू शुड बी एबल टू यूज़ दैट सेफली, एंड बाद में आप उसको बेशक अनइंस्टॉल कर दीजिए. दैट्स पॉसिबल. सो दैट इज़ ऑल्सो ईजिली आई वुड से अवेलेबल, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऐप. येस, अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो cybercrime.gov.in आई हैड मेंशन टू यू. यू कैन ऑलवेज डू complaint, lodge a complaint there, or call up 112. That is easily recorded, and you can register your complaint there. तो वो आप कर सकते हैं. इंक्रिप्शन को लेकर के क्वेश्चन है कि भाई व्हाट्सएप इंक्रिप्शन मीडियम है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं, इज इट सेफ? येस, कंपेयर टू अदर्स, इंक्रिप्शन गिव्स अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, एंड ईजिली जीमेल या I would say Facebook or other media, they do not reveal your identity and your data therein, because unless it is demanded by law enforcement, and then that is a different case. But encryption will give you some security. You can use that. That is a possibility. Yes, any other questions? YouTube portals are obviously, news portals are legal. They have proper official handles. You can use that. That is possible. If you want to purchase anything online, you can use payment gateways, secure ones, the very popular ones, like you can use even online. Apps are good when you're using Paytm, but you have to be careful. Don't get into the social engineering trap. That is my only point, कि आपको कोई चीट ना करे. बेसिकली कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ना ले ले, जैसे आप QR कोड स्कैन कर देंगे और फिर दूसरे को एक एक्सेस मिल जाता है आपको डेबिट करने के लिए अकाउंट, वो नहीं होना चाहिए. दैट शुड नॉट हैपन. एंड लॉट ऑफ टाइम्स हैकिंग ऑफ अकाउंट्स, येस, हैकिंग ऑफ अकाउंट्स हो रहे हैं. एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमने पीछे कुछ केसेस देखे हैं हैकिंग को लेकर के, जिसमें रैंसमवेयर अटैक्स हैं.
जैसे कि कोई पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करिए जिसमें मैलवेयर है, पूरा का पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है, फाइल्स लॉक हो जाते हैं, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो आपसे मनी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। तो वो रैकेट्स बहुत फैल रहे हैं। और एक और चीज़ है जिसमें कि आप देखेंगे मैन इन द मिडल अटैक्स, जिसमें एक जो जानकार है, जैसे कोई बायर और सेलर का के बीच में एक पेमेंट जिसको पता है और अकाउंट्स पता है कि कौन ओनर्स हैं, उनके जो कहते हैं ना कि जानकार हैं, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर करके वो एक फेक क्रिएट कर सकते हैं, एक फेक अकाउंट, और जिसके ज़रिए वो कन्फ्यूजन क्रिएट करें बायर सेलर में और एक फेक अकाउंट के अंदर जाके मनी डेबिट या क्रेडिट हो जाए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ नोन एज अ मैन इन द मिडल अटैक। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ई पेपर न्यूज़, अच्छा ये एक क्वेश्चन है, अगर पायरेसी हो ई पेपर न्यूज़ की, वो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आईपी से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड्स। अब उसमें भी किसी की कॉपीराइट इन्फ्रिंज होना, फ्रेमिंग करना, या किसी की कॉपीराइट एक पर्टिकुलर पेपर अगर आपको नहीं परमिशन दे रहा, आप पूरा का पूरा पेपर किसी साइट पे डाल देंगे तो इट कैन बी अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, चाहे आपने उसका सोर्स दिया है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल। बट आजकल इतना ज़्यादा न्यूज़ क्लिप्स तो हर जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, दैट शुड नॉट बी एन इशू as long as the source is given. But full papers, e-papers are being stolen, that's something which is probably not acceptable. Protecting yourself against identity theft, we have very strong passwords, because that is one way, and use two-step authentication mechanisms. If you see somebody has created a fake ID or profile, report to the social media platform. That is very very important. And if still nothing happens, obviously you can report it to the police as well for investigation. The profile will be blocked. That is possible. Okay, another very interesting question on AI I see here is it possible to have a judgment via artificial intelligence when psychological effect is of great importance? So true. A lot of small time cases, something like petty fine cases or traffic challans and other things, they can still be means of ODR or through means of AI can be resolved. But yes, I would say graver cases or something which are serious, like criminal cases, like if you have murder trial or something, that can't be done through an artificial intelligence for sure. At least to date, I have that opinion. Okay, there's another question on password security. Password security, you can use a password manager. I had recommended that because it's a very very good way of protecting your several passwords. You have n number of passwords, you have so many platforms, so many services you use. So that is like a password manager which will encrypt all the passwords and user IDs you have for various services and put them all under one particular safe service. So that is something which you can do, and that usually they are saved either on cloud or या वो यहाँ पे मशीन पे भी सेव हो सकते हैं. So that option is available, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. So another question is on hacking of accounts. So how can we protect ourselves from hacking of accounts? अगर आप official email IDs यूज़ कर रहे हैं, supposingly work from home environment में, lot of companies are using VPN, which is virtual private network. It's very safe, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक सिक्योर लेयर है और VPN में एक इंक्रिप्शन यूज़ होता है. तो whatever emails are going, they are even the ID, the password, the IP of that particular machine जिससे आप भेज रहे हो, वो भी हाइड हो जाता है, कंसील हो जाता है. And with the help of that, you are able to safeguard your identity as well as the message which is going in encrypted way. तो वो भी एक अच्छा जरिया है. I think you can use that also. बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स हैं. आई थिंक देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेफ पासवर्ड. बहुत सारे मैनेजर्स. आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड अ पर्टिकुलर ब्रांड हियर, but just Google and see the feedback of reviews of these available various available password managers, and you can just take up any service which you feel is right. Okay, so somebody stealing private data, whether it is possible to have an action against them. Yes, because somebody who is stealing your personal data will obviously be charged of hacking if this person has done the same. And there is a compensation which is payable. There is a court which is the adjudicating authority, court.
apart from punishing the person, having a criminal prosecution, there is a court under section 43 and 46 of the IT Act. So that is a secretary IT of every state. So the secretary IT will hear this complaint and in grant compensation if this person is found guilty of doing the same. Yeah. Okay, so another question is, if sometimes Facebook account is hacked and wrong stuff is posted, how we can deal with it? There is a public grievance officer of Facebook also. So you can actually write to the public grievance officer on mail and report abuse. They will remove this content within 36 hours. It is possible to do that, and it's a law, so they have to comply with that. We have done cases where if they have not supposedly removed it, you can actually move the court. You can actually move the court against any service provider and say that despite your complaint, we have not removed it, and this is the evidence of you complaining, because that is a law under section 79 of the IT Act. The moment they are informed of this illegality and they don't take any action, then they are actually liable. So they are answerable to the courts. So even you can do the same. That is possible. Any other questions? I think we have many on the screen, but if there are any questions, please let me know. Any other questions, you can please type on the window. I'm able to see everybody commenting on the chat window. So any other comments, I'll be happy to take. Otherwise, feel free to write to me as well on karnika@sateassociates.com. That's my email address. I'll spell it out: karnika@SETHASSOCIATES.com. You can feel free to mail me as well and stay in touch. Who is competent to issue certificate under section 65 of the Evidence Act? Very interesting question. Probably comes through a lawyer or somebody from the law enforcement. Mr. Rakesh's question here. Okay, so under section 65B of the Evidence Act, anybody who wants to file an electronic evidence can actually print that out first of all and sign a certificate to say that it is taken from this machine, and it is a particular piece of information which you want to file along with your case, and it is from a machine which was working perfectly in order, and you can actually use that particular piece of evidence after giving that certificate. That's possible. That's the law of the land again. And you have also asked, I think there's another gentleman who's asked about the Shreya Singhal case. A Shreya Singhal case is a very landmark case wherein section 66A of the IT Act was struck down. What provision? This provision basically meant that anything, if somebody publishes anything offensive or anything which is harmful to minors, that should not be allowed. That should be prohibited. The Supreme Court of India looked into this question, and basically it held that this particular term, harmful to minors or offensive, was so ambiguous that it could be misused. So it struck down that provision. But let me tell you, dear friends, that this provision, even though it is struck down, still writing something abusive or stalking somebody or putting any offensive content is still illegal under different other provisions which exist today, like the IPC and the IT Act. So it's not that we don't have a law on the country. Yet I do want to make a statement that our IT Act is definitely not strong enough in terms of a lot of provisions. For example, doesn't have anything specific to do with fake news and curbing fake news. There are newer problems like sexting is another term which is used today, which means that somebody is sending a lewd SMS. So there's no particular section devoted to that, although we could use 67 and 67A maybe of the IT Act. But there are a lot of new problems, like emerging problems, and a lot of them will need to be addressed by making suitable amendments in the IT Act. And I see that forthcoming also because
the way system is going to function, the work from home culture, the privacy law which will come into place very soon, and the new virtual court, the virtualization and the digitization of the judiciary and the access to justice will invoke a lot of changes. बहुत सारे changes आने वाले हैं judiciary में, कैसे access to justice मिलेगा. E-court system जो I think under the chairmanship of the E-Committee of Justice Lokur has done a lot of I would say commendable work in terms of giving this new software, and I was fortunate to write that manual for the software. It brings a lot of things to the table that you can actually digitize and give even a person, a common man, the right to actually file something legally and file a case in the court of law sitting in a district. If those softwares are implemented, I think it can do wonders for the country. So I look forward to seeing that happen more and more courts adopting that e-court procedure. Okay, another question comes along which is on call recording of communications. Yes, video recordings, call recordings are all admissible in a court of law. And let me tell you interesting thing, my friends, that if you're getting a particular evidence and whether you've got it legally or not is sometimes not even questioned. It's a separate issue when some people try to do hacking and then get into somebody's account and get that information. That could be problematic, but somebody is recorded a video conversation or an audio conversation and wants to produce that as an evidence is possible. It's your right to give your evidence in support of that, and there's no hacking really involved in that. So that's something will not be questioned really. If the evidence you bringing ला रहे हैं कोई evidence, चाहे video और audio recording के थ्रू हो, वो आप दे सकते हैं कोर्ट में, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अनलेस कि वो आपने हैकिंग के थ्रू उस चीज़ को लिया है. एनीथिंग एल्स आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर. अगर कोई और क्वेश्चन है किसी के भी पास तो प्लीज़ वी वुड लाइक टू टेक इट अप. Okay, I think we've answered most of the questions, but feel free to be in touch. And I want to end by thanking you all for patiently listening to me. And I know it's through the chat window I've been able to interact with you as well. I've seen a lot of interesting interaction happening, and IP address is something I can still see one or two questions coming in. But one question which I don't want to leave without answering is an IP address question. IP address जो है एक कंप्यूटर का एड्रेस है, जो एक जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, it's like that. And you can actually even hide it through software. But ऐसे भी केसेस हमने डील किए हैं जब एक IP किसी ने कैमोफ्लेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया और बाद में लाइट चली जाती है एंड इलेक्ट्रिसिटी रीअगेन कनेक्शन होता है एंड देन द रियल IP शोज़. तो अगर वो पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, ही विल बी कॉट बिकॉज द रियल IP विल बी शोन. तो ये देर आर इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ IP एंड स्पूफिंग ऑफ IP. In very interesting cybercrime cases we deal with on a very regular basis. तो इतने सारी कहानियाँ हैं, मैं शायद एक ही प्रोग्राम में आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगी. रियल लाइफ केसेस हैं, शायद नेक्स्ट जो हम फेसबुक लाइव करें उसमें हम सिर्फ रियल लाइफ केसेस को डील करें. आई होप टू डू दैट वेरी सून. बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें थ्रू ईमेल फॉरेंसिक्स हमने ट्रैक कर लिया है कि कहाँ से एक ईमेल आ रहा है, या हमने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जिससे हम पता लगा लें कि एक व्हाट्सएप ID कहाँ से स्पूफ किया गया है, कहाँ से टावर सिग्नल्स आ रहे हैं, या कहाँ से एक पर्टिकुलर क्राइम कमिट हुआ है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने के बाद भी कोई ना कोई एक लूप होल रह जाता है जिससे कि वी आर एबल टू ट्रेस एंड ट्रैक. And thanks to our law enforcement teams and the software that they have and the tools now that I've been myself training the law enforcement for about 2 decades now, and we've made good headways. And although I feel कि बहुत सारी implementation अभी भी रहती है बहुत सारी चीज़ों में, but वो it's quite catching up speed and काफ़ी कुछ होने वाला है इस country में. And I want to thank Mr. Bhargav. Really, I think without your initiative, probably this would not have been possible to go live on the Facebook with so many people listening to us today. Thank you indeed. I wish you all the success to everybody here, and stay safe, stay home, and thanks to everyone.
Thank you so much for being with me here today. Jai Hind.